Hello students, very good morning. I welcome you all to this video lecture. I, Yash Santwani from Shiv Jyoti Educational Group, Faculty Commerce. So class, we have already discussed about the basic terms of accounting, the journal entries, the recording of transaction, special books, the cash books, subsidiary books and many other basic things. So class, today we are here अगेन विथ समथिंग दैट इज रिलेटेड टू जर्नल एंट्रीज ओनली. मैंने हमेशा कहा है आपको कि अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती है तो आपको अकाउंटेंसी आती है. और हमारा जो आज का टॉपिक है टुडे, इट इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, विच मीन्स अगर हम लोग के जर्नल एंट्रीज के अंदर कोई मिस्टेक कर देते हैं, इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ एरर वाइल डूइंग द जर्नल एंट्रीज, देन हाउ कैन वी रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर एरर. सो लेट्स मूव फर्दर विद द टॉपिक क्लास. What we are going to discuss in this chapter? Class, we are going to discuss about the meaning of rectification of error, that is what do you mean by the rectification of errors. Then the types of error, how many types of error are there, that is one-sided error, two-sided errors. Then the suspense account, क्या होता है suspense account, इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग. और फिर उसके बाद में problems देखेंगे कुछ rectification of errors से related. Come on, let's move further class. So, what do you mean by rectification of errors? Once an error is located, it should be properly corrected. The correction of accounting error in a systematic manner is called rectification of error. In simple words, class, जर्नल एंट्रीज को करने में अगर हमें कोई गलती हो जाती है और हम लोग उस गलती को जान लेते हैं कि हमने कोई मिस्टेक करी है, तो उसको हमें उसी टाइम पर करेक्ट करना पड़ता है और उसी टाइम पर हम लोगों को एक करेक्ट एंट्री पास करनी पड़ती है, एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी पड़ती है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. सो लेट्स मूव फर्दर. नाउ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर, मतलब कितने तरह की गलतियां हैं जो हम लोग कर सकते हैं वाइल पासिंग द जर्नल एंट्रीज. लेट्स हैव अ लुक क्लास. Broadly there are two different kind of errors with us, that is your one-sided error and the two-sided error. So in two-sided error there are error of omission. Error of omission का मतलब हम लोगों ने omit कर दिया है, कोई एंट्री ही नहीं करी है, हम लोगों ने भूल गए हम एंट्री करना. फिर उसके बाद में आता है error of commission, error of original entry, compensating error, एरर ऑफ प्रिंसिपल. ये सारे टाइप्स हैं हमारे पास में डबल साइडेड यानी कि टू साइडेड एरर के. एक और चीज, नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट, विच मीन्स जो टू साइडेड एरर्स होती हैं उससे हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता है, वो आपको सेम वही रिजल्ट शो करता है, लेकिन एरर तो हो गई है तो उसको रेक्टिफाई करना बहुत कंपलसरी है. Alright, and then it comes to one-sided error in which we have to prepare the suspense account. ठीक है, वन साइडेड एरर बेसिकली मतलब होता है कि किसी एक लेजर के अंदर हमने मिस्टेक करी है, बाकी सब कुछ करेक्ट चल रहा है, तो फिर उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोगों को सस्पेंस अकाउंट को मेंटेन करना पड़ता है. ऑलराइट क्लास, सो लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल. Trial balance, we will be okay, let me tell you one thing class. The name of, particularly the name of this chapter is trial balance and rectification of error. All right, if we talk about the NCERT part, then the name of the chapter is trial balance and rectification of error. But when we are dealing with the DK Goel, there are two different chapters. Trial balance itself is a different chapter and rectification of error is a different chapter. So in this video lecture today in this video lecture we are discussing only about the rectification of error. We are not covering any kind of trial balance thing, but then also if the slide is there, we can just have a look on it. Trial balance is a list of closing balances of ledger accounts on a certain date and is the first step टूवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्लास, जब हम लोग हमारे लेजर अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं और उन लेजर अकाउंट्स के जो क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं हमारे पास में, उस क्लोजिंग बैलेंसेस को हम लोग किसी एक पर्टिकुलर डेट पे एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख लेते हैं. सारे क्लोजिंग बैलेंसेस को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम लोग लिख लेते हैं और उसी फॉर्मेट को बोला जाता है ट्रायल बैलेंस. और फिर इस ट्रायल बैलेंस को यूज करके वी आर अबाउट टू प्रिपेयर आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑलराइट, सो मूव फर्दर. Now let's start with two-sided error, and the very first error in this is error of omission. Clear meaning है कि हम लोगों ने एंट्री ही नहीं करी है, we have omitted to pass a journal entry. तो what will be the correction for that?
आपने एंट्री नहीं करी है, आप भूल गए एंट्री करना, तो अब आप एंट्री को कर दीजिए। इज इट क्लियर? ठीक है, बहुत सिंपल है। एंट्री करना भूल गए हैं और अब हमें हमारी मिस्टेक का पता लग गया है, तो अब हम जर्नल एंट्री को कर देंगे और वही उसका रेक्टिफिकेशन माना जाएगा। तो लेट्स कम डायरेक्टली टूवर्ड्स द एग्जाम्पल क्लास। लेट्स हैव द एग्जाम्पल। Purchase of goods from Arshad and Company for rupees 4000 was omitted to be recorded in the books. हम लोगों ने कुछ गुड्स परचेज करे थे अरशद एंड कंपनी से। एज आई हैव टोल्ड यू, नाम आ रहा है, कैश वर्ड नहीं आ रहा है, पहली चीज। दूसरी बात, परचेज ऑफ गुड्स हो रहा है। व्हेन वी आर परचेजिंग गुड्स, तो इसका मतलब हम लोगों को परचेज नाम का एक्सपेंस क्रिएट करना है, एंड देयरफॉर द एंट्री फॉर दैट विल बी purchase account debit to Arshad and Company. All right, and we have forgetted to doing this entry. Now what will be the rectification part? आप अब उस एंट्री को करना भूल गए थे, तो अब आप उस एंट्री को कर दीजिए, सिंपल है। तो देखिए, द करेक्ट एंट्री वॉज परचेज अकाउंट डेबिट टू अरशद एंड कंपनी 4000। ऑल राइट, रॉन्ग एंट्री कुछ थी ही नहीं, निल है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी? डायरेक्ट सेम टू सेम एंट्री को रेक्टिफाइड एंट्री मान लिया जाएगा। क्लास, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ सॉल्विंग द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर थिंग। दिस इज द ओनली बेस्टेस्ट मेथड। आपको क्या करना है इसमें तो खैर अभी हम लोगों ने कोई एंट्री नहीं करी थी, बट इन केस आगे के जैसे एग्जांपल्स हैं, हम लोगों ने कोई एंट्री करी है और वो गलत है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज राइट डाउन दी योर रॉन्ग एंट्री। जो आपने गलत एंट्री कर दी उसको लिख लीजिए, उसके नीचे जो आपकी सही एंट्री होनी चाहिए थी उसको लिख लीजिए, और फिर उन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करके जो एक रेक्टिफाइंग एंट्री हमारे पास में आती है उसको आप बना दीजिए, एंड दैट विल बी द परफेक्ट सॉल्यूशन। लेट्स मूव फर्दर। नाउ देन नेक्स्ट वी आर हैविंग इज एरर ऑफ कमीशन। पहले देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। लेट टॉक अबाउट द मीनिंग। इट मीन्स दैट अ ट्रांजेक्शन इंस्टेड ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन द राइट अकाउंट has been recorded in the wrong account of the same class। मतलब सपोज मान लीजिए कि हम लोगों ने गुड्स परचेज करे थे ए से, ए नाम के पर्सन से हम लोगों ने गुड्स परचेज करे थे। ऑलराइट, तो व्हाट विल बी द ट्रांजेक्शन फॉर अस इज परचेज नाम का एक्सपेंस हो रहा था, परचेज अकाउंट डेबिट करना था। ऑलराइट, और ए नाम का क्रेडिटर बनना था तो ए को क्रेडिट करना था, लेकिन हमने ए को क्रेडिट करने की जगह पे बी नाम के पर्सन को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो क्रेडिटर तो हमने बी को बनाया, क्लास रिमेन्स द सेम, लेकिन जो अकाउंट था वो हमने गलत चूज कर लिया। तो इस तरीके की एरर्स को हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल। अ सेल ऑफ रुपीज 3000 टू ए, मैंने परचेज का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे सेल्स का एग्जांपल है, दैट्स इट, was wrongly debited to the account of B। मतलब वही देखिएगा किस तरीके से करते हैं। पहले करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एंट्री होनी चाहिए थी ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये होनी चाहिए थी 3000, लेकिन हमने कर क्या दी? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इन शॉर्ट हम लोगों को ए को डेबिट करना चाहिए था, उसकी जगह पे हम लोगों ने बी को डेबिट कर दिया। अच्छा, क्रेडिट साइड पे कोई मिस्टेक नहीं है तो हम लोग इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको बिल्कुल भी आपको टच नहीं करना है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आपको डेबिट करना था ए को, तो यहाँ पर हमने ए को डेबिट कर दिया। हमने गलती से बी को डेबिट कर दिया था, अब करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन गई? ए अकाउंट डेबिट टू बी 3000 रुपीज से, दैट्स इट। ऑलराइट क्लास, सो दिस वाज एन एग्जांपल फॉर एरर ऑफ कमीशन। लेट्स मूव फर्दर। नाउ the next is your error of original entry. What does it means? It means that the amount of a transaction has been wrongly recorded in the journal and the same wrong amount was also posted in the ledger। देखिए, error of commission में क्या हो रहा था? अमाउंट तो सही था, लेकिन हमारा जो अकाउंट था, जिस अकाउंट पे हमें करना चाहिए था, वो अकाउंट हमारा गलत डेबिट या क्रेडिट हो गया था। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री में व्हाट वी हैव डन इज कि हमारा एंट्री तो करेक्ट है, लेकिन उसका जो अमाउंट है वो हम लोगों ने गलत कर दिया है, और वो गलत अमाउंट ही हमारा लेजर में भी पोस्ट हो गया। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिएगा, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर नईम फॉर रुपीज 5000। हम लोगों ने किसी मिस्टर नईम को गुड्स बेचे होंगे 5000 रुपीज के लिए, एंड रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द सेल्स जनरल एट रुपीज 500
and the same amount of rupees 500 is posted both in the Mr. Naeem and in sales account as well. In short, what we have done is हमें एंट्री करनी चाहिए थी नईम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5000 रुपीज से. देखिएगा आप इधर, ये देखिए करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, नईम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5000 रुपीज होनी चाहिए थी. पर हमने करी क्या दी, एंट्री क्या कर दी, मिस्टर नईम अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अकाउंट तो सही डेबिट और क्रेडिट हुए हैं लेकिन अमाउंट गलत हो गया है. 5000 होना चाहिए था, 500 का करा. तो क्लास in such kind of errors what will be the rectification part, you just have to pass the same entry, you just have to pass the same entry with the difference amount. आप देखिए हमारा नईम डेबिट होना चाहिए था 5000 से, हमने उसको डेबिट कितने से करा, 500 से. इन शॉर्ट 4500 से अभी भी डेबिट होना बचा है तो हमने नईम को डेबिट कर दिया. ठीक है, साथ ही में हमारे पास में सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी 5000 से, हमने उसको क्रेडिट करा 500 से, तो वो भी 4500 से क्रेडिट होना बचा है तो उसको भी क्रेडिट कर दिया 4500 से. ऑलराइट क्लास, इसी में हमारे पास में एक एग्जाम्पल और होता है जब हम लोग उसको ज़्यादा अमाउंट से पास कर देते हैं. इन शॉर्ट मान लीजिए यहाँ पे 5000 की जगह पे 50000 से एंट्री पास कर दी होती, इसका मतलब हम लोगों ने 45000 रुपीज से एंट्री ज़्यादा पास कर रखी है. तो रेक्टिफाई पार्ट क्या होता, हम इसकी अपोजिट एंट्री करते. फिर व्हाट वी हैव टू डू इज हम लोग एंट्री करते सेल्स अकाउंट डेबिट टू नईम 45000. अगर आप ज़्यादा अमाउंट से गलत एंट्री करते हैं तो आप उस एंट्री को अपोजिट कर दीजिए विद द डिफरेंस अमाउंट, और अगर आप कम अमाउंट से एंट्री करते हैं तो आप सेम एंट्री पास कर दीजिए विद द डिफरेंस अमाउंट. Alright class, so this was all about the error of original entry. Let's move further. Now we are having the error of principal. Error of principal means errors caused due to violation of generally accepted accounting principles. Example, incorrect allocation between capital and revenue items. तो treating capital expenditure as a revenue expenditure or ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, यू ऑल आर अवेयर अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. देयर आर कैपिटल नेचर आइटम एंड देयर आर रेवेन्यू नेचर आइटम. मान लीजिए कोई खर्चा है, वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है लेकिन हम लोगों ने उसको रेवेन्यू नेचर पे ट्रीट कर लिया और रेवेन्यू नेचर की एंट्री पास कर दी. तो what we have to do is, and certain kind of errors will be considered as error of principle. Alright class, let's talk with the example. Here are some kind of detailed intro of this topic. Revenue expenditure, short term benefits, routine expenses. Capital expenditure, long term benefits and not in routine. You all are aware about this fact. Here is the example class. Paid wages on installation of new machinery on rupees 10,000. हम लोगों ने मशीनरी को परचेज करते टाइम जो वेजेस पे करे, ठीक है, ऑफ रुपीज 10,000 हैज़ बीन रिकॉर्डेड टू वेज एक्सपेंसेस. क्या हो गया, देखिए जब हम लोग कोई असेट खरीदते हैं, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पार्ट इन दी जर्नल एंट्रीज चैप्टर. कोई भी असेट को यूज में लाने तक का सारा खर्चा उस असेट की कॉस्ट में ही हम लोगों को डेबिट करना होता है. इन शॉर्ट यहाँ पे जो वेजेस पे करे गए ना मशीनरी पे, वो मशीनरी के अंदर ही ऐड होने चाहिए थे और मशीनरी को ही डेबिट करना चाहिए था. ठीक है, दैट मीन्स इट इज अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर. But what they have done is they have just debited the wages expenses in place of machinery. Alright class, कैपिटल वाले को रेवेन्यू मान लिया. तो देखिएगा मैंने जैसा बताया आपको, सबसे पहले तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी टू कैश. उसके बाद हम लोगों ने एंट्री को क्या करी, हम लोगों ने एंट्री करी वेजेस टू कैश. तो गलती देखिएगा किधर हुई है, मशीनरी डेबिट होना चाहिए था, नहीं करा, वेजेस को गलत डेबिट कर दिया. कैश में कोई गलती है क्या, नहीं है. तो अब करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, भाई मशीनरी डेबिट होना चाहिए था, डेबिट हो गया. वेजेस को आपने गलती से डेबिट कर दिया था तो अब आप उसको करेक्ट करने के लिए क्या करो, क्रेडिट कर दो. दिस इज ऑल. ठीक है, इसके अलावा और कोई हमें ज़्यादा इसके अंदर छेड़खानी नहीं करनी है. रेक्टिफिकेशन इज दिस इज ओनली, आप जो एंट्री आपने करी है उसको लिख लो, जो एंट्री होनी चाहिए थी उसको लिख लो और दोनों को कंबाइन करके अपनी रेक्टिफाई एंट्री पास कर लीजिए. दैट्स इट. सो लेट्स मूव फर्दर. दिस वाज द एरर ऑफ प्रिंसिपल. नाउ
दिस वॉज ऑल अबाउट दी टू साइडेड एरर. नाउ इट्स ऑफ कंपनसेटिंग एरर्स. देखिए कंपनसेटिंग एरर्स का मतलब होता है एक गलती दूसरी गलती को कंपनसेट कर गई. इन शॉर्ट नेट रिजल्ट हमारे पास में कुछ भी नहीं आता, यानी कि अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बात करें तो उस पर कोई गलती शो ही नहीं होती है. तो इस तरीके की गलती को ढूंढना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. लेट्स हैव अ लुक. It means that some errors in amount have occurred on the opposite side of two or more accounts and have cancelled themselves in the net results. As I have told you कि जो नेट रिजल्ट्स आते हैं उसमें वो गलती अपने आप कंपनसेट हो जाती है, तो हमें वो एरर पता नहीं लग पाती है. तो हम क्या करेंगे देखिएगा. एग्जाम्पल है, परचेज अकाउंट हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड विद ₹5,000 इंस्टेड ऑफ ₹4,000. हम लोगों को परचेज अकाउंट को डेबिट करना था 4,000 से, लेकिन हमने उसको डेबिट कर दिया 5,000 से. पहली मिस्टेक. ऑन दी अदर हैंड आसिफ अकाउंट हैज बीन रॉन्गली क्रेडिटेड विद ₹1,500 इंस्टेड ऑफ ₹1,000. ठीक है, तो यानी कि हमने एक गलती तो करी है डेबिट के अंदर 500 रुपीज़ की, और दूसरी तरफ आसिफ को क्रेडिट करना चाहिए था हम लोगों को 1,000 से, जिसकी जगह हमने 1,500 से कर दिया. तो आप देखिए परचेज डेबिट साइड पे 500 की गलती हो गई, वहीं क्रेडिट साइड पर भी 500 की गलती हो गई. तो डेबिट और क्रेडिट की गलतियां बराबर हो गई. तो जब हम लोग नेट रिजल्ट पे बात करेंगे तो कोई एरर शो ही नहीं करेगा, लेकिन एरर तो हुआ है क्योंकि दोनों में अमाउंट्स गलत है. तो व्हाट वी हैव टू डू, लुक. एंड वन मोर थिंग इज देयर. सेल्स अकाउंट हैज बीन रॉन्गली क्रेडिटेड विद ₹6,000 इंस्टेड ऑफ ₹5,500. सेल्स में भी गलती करी हमने, 6,000 रुपीज़ से कर दिया उसको 5,500 की जगह पे. तो देखिएगा करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी. परचेज 4,000, आसिफ 1,000 और सेल्स 5,500. दिस विल बी शुड बी द करेक्ट एंट्री. बट व्हाट वी हैव पास्ड दी परचेज अकाउंट डेबिट एज 5,000. देखिएगा परचेज में गलती आ रही 1,000 की डेबिट साइड पे, आसिफ में 1,000 का क्रेडिट होना चाहिए था, 1,500 का क्रेडिट है, यानी कि 500 से ज़्यादा कर रखा है. सेल्स में 5,500 का क्रेडिट होना चाहिए था, 6,000 का है, यानी कि 500 से ज़्यादा क्रेडिट कर रखा है. तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसको अपोजिट कर देंगे. देखिए आसिफ ज़्यादा क्रेडिट हो रहा था ना, तो उसको आप डेबिट कर देंगे. रेक्टिफाइंग एंट्री ये करिए. ये इन्होंने परचेज अकाउंट को लिखा तो ऊपर है, लेकिन आप देखिए उसको आगे शिफ्ट कर दिया है, विच मीन्स कि ये क्रेडिट है. ऑलराइट, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज क्लास. ये परचेज अकाउंट को आगे शिफ्ट करके लिखा हुआ है, विच मीन्स इसको क्रेडिट करा है, और इन दोनों को इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करके लिखा है, विच मीन्स इसको डेबिट करा है. ऐसा नहीं है कि ये नीचे लिखे हुए हैं तो ये क्रेडिट में आ रहे हैं, नहीं. आप खुद देखिएगा आसिफ को हम लोगों को कितने रुपए से करना था, 1,000 रुपीज़ से हमारे को उसको क्रेडिट होना था, और वो क्रेडिट कितने से हो रहा है, 1,500 से. तो 500 से गलत क्रेडिट हो रहा है ना, उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, आप डेबिट कर देंगे. दैट्स इट. ऑलराइट क्लास, सो लेट्स मूव फर्दर नाउ. Okay, so that was all about the two-sided error. Now we are having with us is one-sided errors. Basically one-sided errors क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ. देखिए अभी तक जो हो रहा था, अभी तक के एरर्स के अंदर दो लेजर अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे थे. ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा परचेज तो हो ही रहा था, साथ के साथ में क्रेडिट साइड पर आसिफ और साथ में सेल्स वो भी हो रहा था. ठीक है, मशीनरी की जगह पे वेजेस हो रहा था. तो हमारे पास में दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड पे कोई ना कोई मिस्टेक चल रही थी. लेकिन वन साइडेड एरर पे सिर्फ एक ही साइड पर मिस्टेक आती है, या तो डेबिट कॉलम में आएगी या फिर क्रेडिट कॉलम में आएगी. तो फिर अब आप सोचेंगे सर फिर हम लोग जब रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे तो फिर हम अपोजिट साइड में क्या लिखेंगे. डोंट वरी, अपोजिट साइड में आप सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे. दैट्स इट. सो लेट्स मूव विद द एग्जांपल क्लास. You can have a look over here. Rectify the following errors assuming that a suspense account was to be open. हम लोगों को एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है. Alright. Suppose first error is credit sales to Mohan ₹7,000 were posted to Karan as ₹5,000. क्या गलती करी हम लोगों ने मोहन को सेल्स करा था, क्रेडिट सेल करना था हमें मोहन को कितने रुपीज़ का, 7,000 का. तो हमारे पास में एंट्री क्या होनी चाहिए थी क्लास, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स. ये हमारी जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी फॉर ₹7,000. मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री होनी चाहिए थी 7,000 से. और हम लोगों ने क्या करा, जब हम लोगों ने मोहन की बुक्स में ट्रांसफ़र करना था तो उसकी जगह पे किधर ट्रांसफ़र कर दिया,
करण के अकाउंट में, वो भी कितने रुपए से, 5000 रुपीज से। तो देखिएगा क्या मिस्टेक हुई है, कैसे इसको रेक्टिफाई करा है। लुक, मोहन अकाउंट डेबिट टू करण टू सस्पेंस, ऑलराइट। इन शॉर्ट मैं आपको इसको बोर्ड पे एक्सप्लेन भी करके बता देता हूँ एक बार, आइए बोलना। ऑलराइट क्लास, तो देखिए हम लोगों को हमारे पास में ट्रांजैक्शन क्या था, ट्रांजैक्शन कर रहा था क्लास हम लोगों ने मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7000 रुपीज, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7000 रुपीज। ये हम लोगों की एंट्री होनी चाहिए थी, और मान लेते हैं कि ये एंट्री हम लोगों ने कर भी दी होगी, ठीक है। अब उसके बाद में जब हमें मोहन के लेजर में 7000 ट्रांसफर करना था, उसकी जगह पे हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने करण अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी कि करण के लेजर पे जाकर हम लोगों ने उसको 5000 का डेबिट दिखा दिया। तो अब आप देखिए मिस्टेक कहाँ पर आ रही है, सेल्स में कोई मिस्टेक नहीं हुई है, सेल्स एकदम करेक्ट गया है। मिस्टेक पोस्टिंग करते टाइम आई है कहाँ पर, मोहन के लेजर में जाना चाहिए था 7000, लेकिन करण के लेजर में चला गया 5000। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी देखिएगा। देखिए मोहन डेबिट होना चाहिए था 7000 से, तो मोहन को डेबिट कर देते हैं अपन, मोहन अकाउंट डेबिट 7000 से कर दिया अपन ने। क्लियर हो गई बात, ठीक है। उसी के साथ में हम लोगों ने करण को गलत डेबिट करा हुआ है 5000 से, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो इधर आ जाएगा टू करण अकाउंट बाय द अमाउंट ऑफ रुपीज 5000। अब आप देखिए कि डेबिट में तो 7000 है, ठीक है, और क्रेडिट कॉलम पे वी आर हैविंग ओनली द अमाउंट ऑफ रुपीज 5000, यानी कि 2000 रुपीज से अभी भी हमारे पास में एक कोई सी चीज क्रेडिट होना बच रहा है, एंड वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लेजर रिमेनिंग विद अस। बेसिकली दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ वन साइडेड एरर, सिर्फ एक तरफ एरर थी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, अगर कोई अकाउंट नहीं मिल रहा है तो किसको लिख देंगे अपन, सस्पेंस को। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टू सस्पेंस अकाउंट, दैट्स इट। ऑलराइट क्लास, so this was the proper solution for the one sided errors. All right, so let's move further toward the digiboard again. So class, we have discussed about this one error, that is the credit sales to Mohan rupees 7000 were posted. एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग वन साइडेड एरर का। सपोज दिस वन, गुड्स रिटर्न टू राकेश रुपीज 4000। हमने क्या करा था, राकेश को गुड्स रिटर्न करे थे, ठीक है, तो इट कैन बी परचेज रिटर्न। अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न ही होगा, पहले हमने परचेज करा होगा फिर हमने परचेज रिटर्न करा होगा। ऑलराइट, तो इन शॉर्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी हमारे पास में यहाँ पे, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, यही होनी चाहिए थी, बाय द अमाउंट ऑफ रुपीज 4000। पर हमने गलती कहाँ करी, वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ नरेश एज रुपीज 3000। इन शॉर्ट हम लोगों को राकेश के डेबिट में 4000 रुपीज शो करना चाहिए था, और हम लोगों ने उसकी जगह पे नरेश के क्रेडिट में 3000 रुपीज शो कर दिया, ठीक है। तो अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे बनाते हैं वो देखिएगा आप। लुक, हमें राकेश को डेबिट करना था 4000 से, राकेश अकाउंट डेबिट 4000, ठीक है। हम लोगों ने नरेश को गलत क्रेडिट कर दिया था 3000 से, तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो नरेश अकाउंट डेबिट 3000, और अपोजिट यानी कि क्रेडिट साइड पर लिखने के लिए कुछ था नहीं हमारे पास में, तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी जस्ट क्रेडिटेड आर सस्पेंस अकाउंट, सो देयरफॉर टू सस्पेंस अकाउंट बाय द अमाउंट ऑफ रुपीज 7000। ऑलराइट क्लास, सो दिस इज ऑल अबाउट दी वन साइडेड एरर्स, एंड लेट्स मूव फर्दर। इस तरीके का एक सस्पेंस अकाउंट हम लोगों को फॉर्म करना होता है क्लास। जब आपकी सारी जर्नल एंट्रीज हो जाती है तो एक सस्पेंस का लेजर अकाउंट हम लोग ओपन कर देते हैं, ऑलराइट। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये जो डिफरेंस आता है वो हम लोग कहाँ पे ले जाते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर। ये बैलेंसिंग फिगर है हम लोगों का, तो उसको कहाँ पे पोस्टेड कर दिया जाता है, ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्लास। आई एम हियर अबाउट टू डिस्कस दी सम डिलीटेड पोर्शन। जैसा कि आप सभी को पता है, एज पर द करेंट सिनेरियो फॉर दिस सेशन CBSE हैज रिड्यूस आवर सिलेबस बाय 30%,
So let us discuss something about that. So class, from the topic, from the part A, financial accounting 1, the accounting process chapter is accounting process. What have they been deleted from the bank reconciliation statement chapter? The bank reconciliation statement with adjusted cash book, एक्चुअली BRS जो हमारा चैप्टर है उसमें से ये वाला जो टॉपिक है एडजस्टेड कैश बुक वाला जो टॉपिक है उसको एलिमिनेट कर दिया है. इट इज़ नॉट नाउ, इट इज़ नॉट इन योर कोर्स नाउ. फिर अगर हम बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर की, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो वहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल, ये वाले दोनों टॉपिक को डिलीट कर दिया है. इट इज़ एलिमिनेटेड, इट इज़ नॉट देयर इन योर कोर्स. Alright, this was all about the part A. Now if we talk about your financial accounting, that is your part B. So इसमें क्या क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. कौन कौन से टॉपिक्स है जो नहीं है? एक तो चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड. ध्यान रखिएगा, पूरा चैप्टर नहीं हटाया है, उस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को एलिमिनेट करा है. ओके, जैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का चैप्टर है, इसमें से डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये जो डिफरेंस था उसके अंदर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था उसको एलिमिनेट कर दिया. इट इज नॉट इन योर कोर्स नाउ. एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इस वाली चीज को भी एलिमिनेट कर दिया है फ्रॉम द चैप्टर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. मतलब चैप्टर तो है लेकिन ये वाले टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है. ऑलराइट क्लास, I hope you all are well at your home. So please stay home and stay safe, stay connected. आपके पास में वीडियो लेक्चर्स आते रहेंगे. प्लीज़ आप अपनी घर पे पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू.